Hello students, I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject Android mobile application development. In this subject, we already have seen the SDLC software development lifecycle and the OOPS concept, how we can use or utilize the OOPS concept with mobile application development. There is no doubt there is an OOPS concept for each and every language which you are going to implement throughout your engineering. And in this particular subject, we are studying about the mobile applications. And in that particularly, we are focusing on the Android, how Android works, what is the use of the Android, and how Android come into the existence. So today we are going to study about the introduction to the Android, how you can build your first application, how Android ecosystem works, and basic structure, or you can say the infrastructure of the Android. So before starting about the Android, or introduction to Android, Android is a simple ecosystem, or you can say कि it is a platform architect which you can use, and nowadays it is quite common one कि 10 में से 9 लोगों के पास Android होता है because the wide use of the technology, wide use of the phones, and if we can say कि apart from the smartphones we are using smart gadgets nowadays. So smart gadgets में भी कहीं ना कहीं Android का use हो रहा है, and with that we are going to see the challenges of the Android application development and fundamental of the Androids in this particular chapter. And uh, what is Android and how it will be useful for the user, उसके बारे में है. So Android is an operating system based on the Linux kernel. विद दैट इसका जो यूजर इंटरफेस है, मीन्स जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो या कोई गैजेट्स यूज कर रहे हो, स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो, या nowadays if you are using washing machines or a fridge, तो उसके ऊपर एक टच स्क्रीन आता है which is in technical terms you can say it is a user interface of that particular device. So उसको आप with the finger of your tips आप उसको एक्सेस कर सकते हो. एंड्रॉयड ज़्यादातर 80% ऑफ द स्मार्टफोन्स जो एंड्रॉयड का यूज होता है, अपार्ट फ्रॉम 20% स्मार्टफोन्स डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज पे रिलाई कर रहे हैं और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं. एंड्रॉयड ऑल्सो यूज फॉर द पावर डिवाइसेस सच एज वॉचेस, टीवीज, कार्स, फ्रिजेस. जैसे मैंने बोला कि अभी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ एंड्रॉइड का भी वहाँ पे यूज होता है. गूगल प्ले स्टोर पे over 2 million Android applications are there, different regarding the education, regarding the games, regarding the social media. वहाँ पे more than 2 million applications are available, and it is highly customized for devices by vendors, and it is open source. Android is an open source software development platform for creating the mobile application. And जब भी आप Android with the open source सॉफ्टवेयर के साथ बनाते हो, उस टाइम पे वो 2 से 3 चीज़ों पे वर्क करता है. लाइक उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, उसकी उसका मिडलवेयर है उस पर वो वर्क करता है. उसके साथ साथ कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे हैं उसमें भी वो वर्क करता है, लाइक ईमेल है, एसएमएस है, ईआईएम है, वेब ब्राउजर्स है, उन पे भी वर्क करता है. एंड जब आप एंड्रॉयड का यूज करते हो तो आप एपीआई लाइब्रेरीज का यूज करते हो. विल सी दैट इन फर्दर. तो उन एपीआई लाइब्रेरीज का जो मोबाइल एप्लीकेशंस होता है, जो पर्टिकुलर अपनी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज को हैंडल करता है या होल्ड करता है, तो कुछ ऐसी एपीआईज है जैसे कि एसक्यूलाइट है, वेबकिट है, ओपन जीएलईएस है. ये सारी लाइब्रेरीज, एपीआई लाइब्रेरीज को एंड्रॉइड सपोर्ट करता है. एंड जब यूजर इंटरेक्शन की बात करो एंड्रॉइड में, तो वहाँ पे टच जेस्चर आता है, लाइक स्वाइपिंग है, टैपिंग है, पिंचिंग है. यू ऑलरेडी यू गाइज आर यूजिंग द स्मार्टफोन्स. अभी कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहा है. तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जब टच करते हो तब आप स्वाइप करते हो, टैप करते हो, पिंचिंग करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं कैरेक्टर्स के लिए, नंबर्स के लिए, इमोजीज शेयर करने के लिए, या तो कोई मीडियाज है उसको शेयर करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करते हो. So this is the basic user interaction for the Android.
and Android also supports the Bluetooth and USB controller devices and other peripherals according to customers requirement. उसके साथ साथ अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे एंड्रॉयड का एंड सेंसर्स का यूज भी ज्यादा हो रहा है सेंसर्स और यू कैन से कि इंटरनेट ऑफ द थिंग्स इज नाउ बिकमिंग अ न्यू वर्ल्ड सो नाउअडेज पब्लिक उस पर भी रिलाई कर रही है तो उसका यूज भी ज्यादातर हो रहा है यस वी आर यूजिंग सेंसर्स विद द एंड्रॉयड ठीक है सो वो डिवाइस को होल्ड करने में उसको रोटेट करने में अकॉर्डिंगली वो हेल्प करता है फिर इफ देयर इज एन वॉकिंग एडजस्टमेंट पोजीशंस ऑन द मैप सो उसको भी वो हेल्पफुल रहता है इट्स मूविंग टू फास्ट डिसेबल द गेम इन इंटरेक्शंस उसमें भी हेल्पफुल है एंड इजियर टर्म्स इफ आई से if I'll talk in easier terms, so जैसे मेरे स्मार्ट वॉच है तो मैंने कोई स्मार्ट वॉच पहनी है तो जो उसके बिट्स ट्रैक करता है हार्ट बीट ट्रैक करता है या तो वॉकिंग डिस्टेंस है जो मैं वॉक करती हूँ उसको वो ट्रैक करता है वहाँ पे क्या है एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस आया और उसके साथ साथ सेंसर्स का मर्जअप हुआ तो उसको भी सपोर्ट करता है this is the home screen of the Android, as you can see in the picture right side, and you very well about this, aware about this because we are using smartphones. And even if you are studying this lecture, either from the laptop or either from the phone, so phone is a medium कि जिसके थ्रू आप ये लेक्चर को सुन रहे हो तो वहाँ पे भी क्या हुआ आपके एंड्रॉइड का यूज आया तो एंड्रॉइड होम स्क्रीन में लॉन्चर आइकॉन्स होता है आपका जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके लिए देन यू कैन आल्सो अपडेट योर विजेट्स फॉर लाइव कंटेंट आपके अकॉर्डिंग आप अपने विजेट सेट कर सकते हो मल्टीपल पेजेस सेट कर सकते हो आप अपनी फोल्डर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि आपको एजुकेशन के लिए कोई एप्लीकेशन है तो उसका एक फोल्डर बनाना है गेम्स के लिए कोई अलग से 3 से 4 गेम्स है आपके फोन में तो उसका आपको एक फोल्डर बनाना है तब वो बना सकते हो आपके वर्क के रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशंस है जैसे कि जीमेल है डॉक्यूमेंट्स है गूगल शीट है उसका अगर आप एक्सेस कर रहे हो थ्रू द स्मार्टफोन तो उसको आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो there are some Android application examples are there like Pandora like Pokemon Go is an game and Facebook Messenger which is a social media and might be you are using Instagram might be you are using WhatsApp so that are the Android applications and जिसका यूज होता है एंड जैसे जैसे एंड्रॉइड का यूज हो रहा है उसके एंड्रॉइड के एडवांटेजेस भी है लाइक एडवांटेजेस क्या है कि एंड्रॉइड सपोर्ट करता है 2D एंड 3D ग्राफिक्स को उसके साथ साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट है उसको सपोर्ट करता है फास्टर वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है क्योंकि आपके जो मल्टीमीडियाज है 2D में 3D में है या वीडियो है GIF है सो अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स है वो इजीली लोड कर देता है आपके एप्लीकेशन के थ्रू सो फास्टर वेब ब्राउजर इज अवेलेबल देयर देन जैसे फास्टर वेब ब्राउजर है वो मल्टीपल मल्टीमीडिया को सपोर्ट कर रहा है तो वो MP3 MP4 3GP MPG4 MIDI इन सभी को सपोर्ट कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट मीन्स कि ये जो कन्वर्जन होता है कि कभी एक मीडिया से दूसरे मीडिया में कन्वर्ट करना है कि ऑडियो से वीडियो स्टाइल में कन्वर्ट करना है या वीडियो से ऑडियो स्टाइल में कन्वर्ट करना है उस टाइम पे एंड्रॉइड वुड बी हेल्पफुल वीडियो कॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दैट you can use the tools very easily and simply देन सोशल नेटवर्किंग इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो एंड जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज भी गेन कर सकते हो बेटर नोटिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर लो चांस ऑफ क्रैशिंग इज देयर सो आपका डेटा जो भी है वो सेफ रहता है स्टेबिलिटी इज देयर दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एंड्रॉइड जिसका यूज होता है एंड ये जो एंड्रॉयड है उसको मतलब आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करवाने के लिए SDK का यूज होता है विच इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट तो एंड्रॉयड के साथ SDK बाय डिफॉल्ट होता है और वो क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है कि आपका जो डेवलपमेंट टूल्स होता है लाइक डिबगिंग है मॉनिटरिंग है एडिटिंग है उसको वो हेल्प करता है आपकी जो लाइब्रेरीज है
लाइक मैप्स के रिगार्डिंग लाइक लाइब्रेरीज है, वेरेबल्स है लाइक स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है, और अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई स्मार्ट गैजेट्स है कि जिसको आप पहन सकते हो एंड जिसका आप यूटिलाइजेशन ले सकते हो, तो उनकी लाइब्रेरीज को हैंडल करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वर्चुअल डिवाइसेस है उनको हैंडल करता है, डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन होता है तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए sdkdevelopers.android.com का यूज होता है। एंड we have the samples code over here कि एंड्रॉइड का जो अगर सिंपल सा कोड है तो वो कैसे हो सकता है। फॉर दैट डेवलपिंग वी आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो आप अपने लैपटॉप में या अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हो एंड विद द एंड्रॉइड स्टूडियो आप डेवलप कर सकते हो, रन कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, आप अपने एप्लीकेशन में कौन से पैकेजेस ऐड करने हैं वो डिसाइड कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन का मॉनिटरेशन, उसका परफॉर्मेंस टूल है उसको आप सेटअप कर सकते हो। वर्चुअल डिवाइसेस एज यू कैन सी इन द फिगर ओवर हियर, यहाँ पे जो आपको वर्चुअल डिवाइस दिख रहा है उस डिवाइस में आप अपना वर्चुअल आउटपुट भी इवन देख पाओगे, प्रोजेक्ट व्यूज अवेलेबल है एंड विजुअल लेआउट एडिटर अवेलेबल है। एंड आप अपनी एप्लीकेशन जो भी बनाओगे उसको थ्रू द गूगल प्ले आप उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आप कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचा सको एंड अल्टीमेटली आप अपना ग्रोथ देख सको, बिजनेस का ग्रोथ देख सको। सो गूगल प्ले स्टोर उसको सपोर्ट करता है, वहां पे आप अपने ऑफिशियल ऐप स्टोर फॉर द एंड्रॉइड आर अवेलेबल एंड इफ यू वांट टू पब्लिश योर एप्लीकेशन यू कैन आल्सो पब्लिश ओवर दैट एंड दैट इज digital distribution service operated by the Google. Now we are studying about the Android platform architecture. So Android platform architecture में this is the steps or you can say कि stack. Android stack is that and उसको ये support करता है। और जो हमने अभी API के बारे में बात किया, Android APIs के बारे में, तो बहुत सारे different APIs अवेलेबल है जो Android सपोर्ट करती है, जैसे कि Android.util है, Android.os है, Android.graphics है, Android.text है, Android.database है, Android.view है, Android.widget है, Android.app है, Android.provider है, Android.telephony है, Android .content है, com.google.android maps भी है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ये इनबिल्ड लाइब्रेरीज है, API है अवेलेबल है जो आप इजीली यूज कर सकते हो और आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो, तो उनका आप यूज कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। तो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर और एंड्रॉइड टेक इज अ सिमिलर थिंग, इसमें 5 चीजें हैं। फर्स्ट एज है सिस्टम और यूजर एप्लीकेशन, सेकेंड वन है जावा API फ्रेमवर्क, मीन्स वहाँ पे आपका एंड्रॉइड OS API है वो जावा फ्रेमवर्क में होता है। थर्ड थिंग कि आपकी नेटिव APIs और एप्लीकेशन को रन करने के लिए होता है, तो नेटिव APIs और नेटिव लाइब्रेरीज आर C and C++, तो उसको वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा है। एंड्रॉइड रन टाइम को हैंडल कर रहा है। फोर्थ लेयर इज HAL which is हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर एंड वहाँ पे आपके डिवाइसेस expose the devices and hardware capabilities कि आपका जो डिवाइस है और आपकी जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज है उसका कितना आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एंड द फिफ्थ वन इज लिनक्स कर्नल। So this is the basic Android stack or Android architecture, you can say that. So system and user applications are no special status, but वो क्या है, system applications की provide करता है capabilities to the developer and according to that जो भी सिस्टम में कोई भी मैसेज या कुछ भी डिलीवर करना चाहते हो so उसके लिए सिस्टम एंड यूजर एप्लीकेशन का यूज होता है। सेकेंड वन इज जावा API फ्रेमवर्क। सो जावा API फ्रेमवर्क is the feature set of the Android OS and it is available to us। जैसे मैंने अभी आपको लाइब्रेरीज बताया सारे, ठीक है, उसके साथ साथ जावा API फ्रेमवर्क भी अवेलेबल होता है। ये और जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ और क्या सपोर्ट करता है कि आपका व्यू क्लास हियरार्की टू क्रिएट द UI स्क्रीन्स, यूजर इंटरफेस स्क्रीन्स है उसका व्यू क्लास हियरार्की जो है उसको सपोर्ट करता है जब क्रिएट करते हो तब। नोटिफिकेशन मैनेजर को हैंडल करता है एंड एक्टिविटी मैनेजर फॉर द लाइफ साइकिल्स एंड नेविगेशन उसको सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ
The application manager includes the window, content, activity, telephone, location and notification. ये सारी चीजों को आपका Java API framework include करता है और उसको support करता है. Then we have the Android runtime. So whenever the application run, it's in own process with its own instances of the Android runtime. क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का नेसेसिटी नहीं है कि रन टाइम सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा, उसके इंस्टेंसेस सेम होंगे. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किसी का अप होगा, किसी का डाउन होगा. तो उस टाइम पे एंड्रॉइड रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज आता है और वो उसको काफी अच्छे से सपोर्ट करता है ताकि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका स्केलेबिलिटी, उसका रनेबिलिटी है वो एकदम मेंटेन रहे और सामने वाला जो यूजर है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सही से एंजॉय कर पाए. Then we have the C and C++ libraries. These are the core libraries. You are studying about the C and C++ from the beginning of your engineering. So you are very well about these two languages and libraries. These two core libraries, C and C++, give the access to the core native Android system and component services. So वहाँ पे C and C++ libraries का use होता है. Then we have the HAL, which is hardware abstraction layer. So it is used for two standard interfaces that expose the device's hardware capabilities as libraries. कि ऐसे कुछ devices हैं कि जिनका आपकी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, तो उनको सपोर्ट करवाने के लिए ये लेयर वर्क करता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, लाइक कैमरा है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है. आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो उसमें कैमरा का यूज करते हो, राइट. अभी कैमरा में भी बहुत सारे नेक्स्ट लेवल के कैमराज आर देयर. तो उनको सपोर्ट करवाने के लिए आपको हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर की रिक्वायरमेंट रहती है और इसका रोल वहाँ पे आता है. Then we have the Linux kernel. So threading and low memory management is there. Security features are there. Drivers are there. Android API is the thing कि जिसके साथ आप Linux kernel easily work करता है. And those who are using smartphones, they are very well about the older versions of the Android. कि जब वो इनिशिएट हुआ था 2011 में, जब रिलीज हुआ था, उस टाइम पे हनीकॉम था और वर्जन 3 अवेलेबल था. देन आइसक्रीम सैंडविच आया which is version 4. जेली बीन आया which is 4.1. किटकैट वर्जन आया 4.4. लॉलीपॉप वर्जन आया 5.0. एंड दिस इज goes beyond marshmallow, nougat, Oreo, pie. According to the survey, this is the last updated version, not the last updated version, but जब ये सर्वे किया गया था उस टाइम की बात है कि अगस्त 2018 में 9th वर्जन आया था पाई. एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग द एंड्रॉइड वर्जन 12.0, राइट, which is snow version. So currently those who are using the new smartphones, उनमें by default वर्जन जो अवेलेबल है जो है 12.0 version of the Android OS. Okay, now let's talk about the application development. So what is an Android app? So it is one or more than interactive screens are there and जिनका आप यूज कर सकते हो, एंड जिसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एंड XML लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया है, एंड जिसमें SDK का यूज हुआ है. वी ऑलरेडी हैव सीन द SDK कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उसका कैसे यूज होता है एंड कैसे वो एंड्रॉइड के साथ फुलफिल हो रहा है. एंड विद दैट वी आर यूजिंग एंड्रॉइड लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड इट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाय द एंड्रॉइड रन टाइम वर्चुअल मशीन. भी कौन से टाइप के चैलेंजेस थे जब एंड्रॉइड को डेवलप कर रहे थे. नाउअडेज देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस. उसी की वजह से बार बार आपके एप्लीकेशन में आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में अपडेशन आता है, राइट. सो चैलेंजेस डे बाय डे होता है, बट सम कॉमन चैलेंजेस आर देयर कि कौन से है कि मल्टीपल स्क्रीन साइज एंड उसके रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग चैलेंज है. परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग चैलेंज है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जितना स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव होगा उतना सामने वाला यूज करेगा. लाइक इफ आई एम यूजिंग द व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और वो बार बार स्टक होगा, सो आई एम नॉट गोना यूज दैट एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम, राइट. परफॉर्मेंस इज एन challenge for each and every application which are available in your smartphones or which are available in your Play Store.
एंड देन सिक्योरिटी इज इन कंसर्न कि आपका जो सोर्स कोड है या तो यूजर का कोई डेटा है, क्योंकि आप पर्सनल डेटा वहाँ पे फीड इन करते हो, लाइक अपने बर्थ डेट को फीड इन करते हो। एंड इफ यू आर डूइंग बिजनेस, like social media के through business कर रहे हो, so you are going to put some credit card details, debit card details over there, so security is a major concern. That is one challenge. Then compatibility, it must be run on each and every platform with very well maintenance, अदरवाइज कंपेटेबिलिटी इशू आ सकता है। मार्केटिंग मीन्स जो भी एप्लीकेशन बना रहा है, दे हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड द यूजर्स, कि यूजर्स को क्या चाहिए, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो कॉमन पीपल्स है दे आर नॉट गोना अफोर्ड इट। एंड विद दैट वी हैव द बिल्डिंग एप्लीकेशन ब्लॉक्स, कि रिसोर्सेज है, कंपोनेंट्स है, सर्विसेज है, उसकी उसकी जो एक्टिविटीज है, उन सभी का रोल आता है। ये सभी जितना स्मूथली होगा उतना बेटर होगा। बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक एपीके है, एपीके वर्जन आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ मैचअप होने चाहिए, उसका जो लेआउट है, उसके जो इमेजेस यूज हो रहे हैं, उसमें जो कलर्स यूज हो रहा है आपकी एप्लीकेशन में, या कोई मीडिया फाइल्स यूज हो रही है, तो वो अपना बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस देनी चाहिए, एंड उसके साथ ही स्मूथली रन करना चाहिए। So this is about the Android, how Android works. We'll see further in the next session. If you guys have any doubt regarding this session, what is Android and what is the architecture or application stack of the Android, you can put your question in below comment box. Thank you so much.